یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، ہے نا، سرپرائزنگ ہے۔ تو ان تین حوالہ جات میں جیسا ہم نے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھا، اس کے بعد لوکا کی انجیل ہونا چاہیے تھا، لوکا کی انجیل دوسرا باب 8ویں آیت سے 16ویں آیات تک تلاوت کی، اور اس کے بعد یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے 18ویں آیت تک۔ یہ تینوں اناجیل جو ہے ایک ہی شخص کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور وہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے اور میرے منجی خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ متی یسوع مسیح کے متعلق لکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے کس طرح سے معجزانہ طور پر ہوگی، اور وہ یوسف کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اور تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ یوسف اس زمانے کی رسم کے مطابق شاید گھبرایا ہوا تھا، ڈرا اور سہما ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مریم پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور اسے سنسار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی مار ڈالے۔ اس لیے اس نے چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خداوند نے اپنے منصوبے کو اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اس پر ظاہر کیا۔ وہ خواب میں اسے دکھائی دیا اور اسے کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ۔ اور دوسرا حوالہ جو آج ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا وہ لوکا کی انجیل دوسرا باب 8ویں آیت سے 16ویں آیات پر مشتمل تھا، جس میں ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق ملتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو بہت سے چرواہے بیابان میں اپنے بھیڑوں کی، اپنی بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو سنبھال رہے تھے کہ رات کے وقت کوئی بھیڑیا، کوئی شیر آ کر ان کو کھا نہ جائے۔ جب وہ اپنی ہی فکروں میں مبتلا تھے، ایسے لوگ جنہیں لوگ بلانا پسند نہیں کرتے تھے، جن کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کے متعلق یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے نفرت ہے، ان سے بدبو آتی ہے، تو ایسے لوگوں پر سب سے پہلے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش کو ظاہر کیا، اور اپنے فرشتوں کو، پاک ہستیوں کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان غریبوں کو خوشخبری دیں کہ منجی جہاں آج یروشلم شہر میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور ان غریبوں کو، ان چرواہوں کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ خدا نے ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کر اس بادشاہ کا، اس منجی جہاں کا دیدار کر سکے۔ تو فرشتوں کی خبر سن کر یہ لوگ بہت گھبرائے بھی اور حیران بھی ہوئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم جا کر دیکھیں کہ جیسا فرشتوں نے ہمیں کہا ہے کیا واقعی ویسا ہوا۔ انہوں نے جا کر مقدسہ مریم اور یوسف کو دیکھا، اور پھر اپنی بھیڑیں جو خوبصورت جانور اپنے ساتھ لائے تھے وہ بادشاہ کی نظر کر کے واپس لوٹ گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات لکھی ہے کہ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ فرشتوں سے سنا تھا، وہ جا کر انہوں نے سب لوگوں کو بتایا۔ ان سب لوگوں کو جو ان سے ملے یا جن جن تک ان کی رسائی ہوئی، ان کو انہوں نے یسوع مسیح کی خبر دی، اور وہ اپنے راہ پر لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کی خبر سن کر پورب کی طرف سے آئے، اور یہ مجوسی جو ہے اکثر ہم 3 بادشاہ انہیں کہتے ہیں، یا 3 ڈرامہ ہو اور ٹیبلو ہو، وہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کئی مجوسی جو ہے، کئی لوگ، یہ امیر ترین لوگ جو چوکھا سونا چاندی رکھتے تھے، ہیرے جواہرات رکھتے تھے اور بہت سے مسالہ جات رکھتے تھے، بزنس مین تھے، وہ اپنے تحفے طائف لے کر اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ اس خاص
में एक बादशाह पैदा हुआ और वो आए ताकि हेरोदिस से पूछगिछ करें। शायद उनको भी यही लगता था कि हेरोदिस के महल में वो बादशाह पैदा हुआ, इसलिए वो सीधे हेरोदिस के पास है कि वो बादशाह कहाँ है जो पैदा हुआ है, क्योंकि उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। तो हेरोदिस बहुत डर गया, घबरा गया। उसने कहा मेरे तख्त की खैर नहीं, कोई बादशाह पैदा हो गया, क्योंकि ये बात सच थी, सच पर मबनी थी, क्योंकि मजूसी जो थे उन्होंने तहकीक के साथ ये बात की थी और उस वक्त पर यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो जरूरी थी। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह का रसूल यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में जो बयान करता है वो बिल्कुल फर्क है। वो मत्ती रसूल के बयान और लूका तबीब के बयान से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल मुनफरिद। क्योंकि उस जमाने में यीशु मसीह से चंद माह पहले एक शख्स को खबर दी गई कि उसके यहाँ भी बेटे की पैदाइश हुई। वो शख्स ज़िक्रिया का है, उसकी बीवी अलिशबा जो 5 थी, उनके यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। और यूहन्ना नबी जो है, जो ज़िक्रिया का है और अलिशबा का बेटा है, वो यीशु मसीह से चंद माह, शायद 6 माह बड़ा था, लेकिन उसे एक खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया। यूहन्ना नबी जब इस दुनिया में आया तो उससे पहले हमें कोई नबी बर्पा होता हुआ नजर नहीं आता। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी की किताब, मलाकी नबी जो है वो आखिरी नबी था पुराने अहदनामे के मुताबिक। और उसके बाद 400 साल तक का अरसा जो है वो खामोशी का दौर है। 400 साल में खुदा ने कोई अपना पैगंबर, कोई अपना नबी, कोई रसूल बर्पा न किया। लेकिन 400 साल बाद खुदा ने यीशु मसीह से महज 6 माह बड़ा शख्स यूहन्ना नबी जो है वो बर्पा किया। और यूहन्ना की जिंदगी का खास मकसद है, जिसे यूहन्ना रसूल जो यीशु मसीह का शागिर्द है वो बयान करता है। और मरकुस पहला बाब पहली आयत से 8वीं आयत में भी हमें उसके बारे में बयान मिलता है। जब यूहन्ना बर्पा हुआ तो उसने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। यूहन्ना जो है बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, इज द सन ऑफ प्रीस्ट, काहिन का बेटा। लाजिम था कि वो शरीयत का भी बेटा था, उसके पास शरीयत की सनद होती तो यकीनन वो बहुत पढ़ा लिखा शख्स था, उसके पास बहुत बड़ी डिग्री थी, वो पूरी शरीयत को जानता था, वो खुदा को जानता था, खुदा के मंसूबा जात को जानता था, खुदा के बेटे को जानता था। सबसे बड़ी बात मुकद्दस यूहन्ना रसूल यहाँ पे लिखता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम इब्तिदा में खुदा के साथ था। क्योंकि यूहन्ना नबी जो है वो एक नबी था, इसलिए उसके भी शागिर्द थे। वो प्रीस्ट का बेटा था, इसलिए वो भी फकीह फरीसियों की तरह उस्ताद था, सिखाने वाला था। उसके भी बहुत से शागिर्द थे और उसके शागिर्द भी ये जाहिर करते थे कि यीशु मसीह से भी शायद यूहन्ना बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना ने ये लिखने की जसारत की और ये जाहिर किया कि यीशु मसीह यूहन्ना से भी ज्यादा बड़ा है। यीशु मसीह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इब्तिदा ही से खुदा के साथ मौजूद था। इससे पहले कि वो दुनिया में भेजा गया, इससे पहले कि उसने हमारी मरियम से जन्म लिया, वो खुद खुदा के साथ मौजूद था और उसी के वसीले से सारी दुनिया पैदा हुई और उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी एक
पर महदूद है। हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, बस हमारी जिंदगी यही है। पैदाइश और मौत के दरमियानी हिस्से को हम जिंदगी करार देते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है, और खास तौर पे जिंदगी कितनी अहम है इसका इसी बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि फक्त मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने अपने अंजीली बयान में 35 दफा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। और ये जिंदगी जिसका वो बयान करता है, वो जिंदगी है जो मसीह के साथ जुड़ी हुई है। वो जिंदगी है जिसके साथ रूह जिंदा है। सिर्फ सांसें लेने का नाम जिंदगी नहीं है। वो बयान करता है कि जिंदगी दरअसल यीशु मसीह में है, उसमें जिंदगी है, उसके वसीले से जिंदगी जो है वजूद में आई। और फिर वो साथ ही ये भी बयान करता है कि एक शख्स यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया था कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। यहाँ पे यूहन्ना रसूल की जिंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाता है कि वो आने वाले मसीहा की राह तैयार करने के लिए भेजा गया, जिसके बारे में मलाकी नबी ने 30 बाब की पहली आयत में कहा था कि देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और यसाया ने 40 बाब की 3 आयत में कहा कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। यानी कि जो नबियों ने पेश गोइयां की थी यूहन्ना के बारे में, वो पूरी हुई कि वो यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे ज्यादा इज्जत के लायक है, सारी इज्जत और सारा जलाल उसको मिलना चाहिए। यूहन्ना बहुत दलेर शख्स था। यूहन्ना नबी जब खुदा